ART, full form is atraumatic restorative treatment. So this topic comes as a 15 marker or sometimes as a 5 marker question in your PhD, public health dentistry, as well as pediatric, which is pedo exams. So let's get started with our ART topic. So this atraumatic restorative treatment is basically used for the caries control. So this topic is basically same as that of the Pitt-Fisher sealants. So it is basically a minimally invasive procedure. That means it is just a conservative procedure which is used to arrest the caries or prevent the caries and stop its further progression. There are two main principles, jiska crux, the main story of ART lies on these two steps or these two procedures, you can say, or these two principles. That is, ART involves number one, removal of the carious lesion with the help of hand instruments. Okay, and then obviously we have removed the carious lesion, so we have to fill that cavity also, fill that space also. So that is called restoring the cavity, which is done mainly with GIC. Now, principles, first I told you removal of the caries using hand instruments. So why do we prefer only hand instruments and not the rotary instruments? The reason behind that is, first of all, there is low cost. Okay. And the hand instruments can be sterilized very easily. So infection control. Then pain भी less होता है. Why? दूसरी चीज क्या है? That local anesthesia की requirement इसमें बिल्कुल नहीं है. तो hand instruments हम use करते हैं, so there is minimal pain. Okay, and minimal cavity preparation है. I told you before, it is a conservative procedure जिसमें minimal cavity preparation है. That means we इस procedure में we can preserve the sound tooth structure. Then we have to restore the cavity with the help of majorly GIC. बाकी हम compomers, resins ये सब ही use करते हैं. Majorly we prefer GIC. The reason behind that is, first of all, is it chemically binds. Okay, it basically chemically binds to enamel and dentine. Then it has a property of fluoride release, जिसमें ये होता है कि it doesn't cause any caries. Okay, and it does not inflame the pulp or the gingiva. Okay, now talking about the contraindications and indications of ART. इसका मतलब है indications means that ART कहाँ use हो सकता है and ART कहाँ नहीं use हो सकता. That is the contraindication. Now indications is basically, हमने ये बताया था ART में हम hand instruments ही use करते हैं. तो the areas which are accessible, okay, to the hand instruments only, the cavities which are accessible to hand instruments, वहां पे हम ART कर सकते हैं. And in small cavities which involves only the enamel and dentine portion, not the pulp. Okay, and in public health programs is basically like public camps हमारे होते हैं. Okay, तो हम camp hold अगर करते हैं, we go in societies or offices or school areas or any areas, just oral health care checkup होता है वहां पे. We can't carry the whole of our equipment and the dental chairs to a place like that. So इसलिए हम उस वहां पर minimal like treatments देते हैं, minimal interventions करते हैं. Okay, so like ARTs or Pitt-Fishers. So public health programs. Contraindications is obviously अगर हमारा टूथ बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, कोई स्वेलिंग हो गई, कोई फिस्टला है, एंड ऑब्वियसली कोई पल्प एक्सपोजर हो गया, इनएक्सेसिबल एरियाज है जहां हमारे हैंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो नहीं पहुंच सकते, कैविटी इतनी ज्यादा डीप है, तो दैट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन. नाउ मटेरियल्स यूज, बेस्ट मटेरियल इज हाई विस्कोसिटी GIC, which is an adhesive material. It has powder as well as liquid. पाउडर में हमारा SiO2, Al2O3, सिलिकॉन ऑक्साइड, ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड, ये हमारे पाउडर कंटेंट्स है. एंड लिक्विड में हमारा मेजरली पॉलीक्रिलिक एसिड ही होता है. ओके, और हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? रेजिन कॉम्पोजिट्स यूज कर सकते हैं, कॉम्पोमर्स कर सकते हैं, रेजिन मॉडिफाइड GIC यूज कर सकते हैं. नाउ दीज आर द मटेरियल्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच has to be used while performing the ART procedure. So
माउथ मिरर्स हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट विजन के लिए, ओके। एक्सप्लोरर्स हम यूज करते हैं सो एज टू आइडेंटिफाई द केरियस डेंटिन एज वेल एज द सॉफ्ट डेंटिन। ट्वीजर्स, कॉटन गॉज पीसेस एंड ऑल जो है उसको पिकअप करने के लिए। स्पून एक्सकेवेटर्स भी यूज सॉफ्ट एंड केरियस डेंटिन जो है उसको रिमूव करने के लिए। हैशेट हम यूज करते हैं टू वाइडन द कैविटी एंट्रेंसेस, ओके। कार्वर्स वी हैव टू यूज फिनिशिंग करने के लिए ऑफ द एआरटी, जैसे हम एआरटी में जीआईसी यूज करते हैं, रीजन्स यूज करते हैं, सो उस कैविटी को फिनिश करने के लिए हमें कागज का यूज है। देन स्पैचुलस चाहिए एंड मिक्सिंग पेपर पैड चाहिए फॉर जीआईसी मिक्सिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एआरटी। सो प्रोसीजर में हमने 2 स्टेप्स में एक्सप्लेन करना है। एक है आउटसाइड द माउथ विच इज एक्स्ट्रा ओरल प्रोसीजर एंड अदर इज द इंट्रा ओरल इनसाइड द माउथ। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें एआरटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या है, डेंटल चेयर की पोजीशंस पता होनी चाहिए हमें, डेंटिस्ट की पोजीशन पता होनी चाहिए, हमारा हमारा जो डेंटल असिस्टेंट है उसकी पोजीशन पता होना चाहिए, हमारे को लाइट एक्सपोजर कैसा चाहिए, ओके, हमारे को पेशेंट कौन सी पोजीशन में चाहिए, ये सब मैटर करता है फॉर द एआरटी प्रोसीजर। सो सबसे पहले ऑपरेटर की पोजीशन। ऑपरेटर इज द डेंटिस्ट जो हमारा ऑपरेट कर रहा है, ओके। तो ऑब्वियसली हाउ उसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, इट शुड बी दैट ऑपरेटर शुड सिट ऑन द स्टूल वेरी फर्मली, बैक उसकी स्ट्रेट होनी चाहिए, थाइज उसकी फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए एंड फीट जो है उसके फ्लैट ऑन टू द फ्लोर होने चाहिए। देन इज द अच्छा, अब जो हमारी ऑपरेटर है, जो डेंटिस्ट की आई है, ठीक है, मतलब स्टूल का जो पोजीशन है, स्टूल की जो हाइट है, ओके, इट शुड बी एडजस्टेड ताकि जो हमारे ऑपरेटर है वो इजीली पेशेंट का ओरल कैविटी व्यू कर सके। सो ऑपरेटर की आई से पेशेंट का इंट्रा ओरल जो कैविटी है उसका डिस्टेंस शुड बी 30 to 35 सेंटीमीटर, ओके। देन पोजीशन क्या होनी चाहिए एक ऑपरेटर की, डेंटिस्ट की पोजीशन मेजरली रियर पोजीशन अगर चाहिए तो 10 o'clock पोजीशन है एंड डायरेक्ट रियर पोजीशन चाहिए तो 12 o'clock पोजीशन है। तो दीज 2 पोजीशंस 10 and 12 o'clock पोजीशंस आर यूज्ड। नाउ असिस्टेंट्स, ऑब्वियसली असिस्टेंट ने क्या करना है, देखो ये जान लो कि अगर एक राइट हैंडेड डेंटिस्ट है तो उसका असिस्टेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होगा एंड वाइस वर्सा, ओके। असिस्टेंट क्या कर सकता है, क्या क्या रोल्स प्ले करता है। सो सबसे पहले तो सक्शन एंड ऑल सलाइवा कंट्रोल पेशेंट का मेंटेन करेगा, ठीक है, जीआईसी मिक्सिंग एंड ऑल करेगा, ओके। सो राइट हैंडेड डेंटिस्ट एज आई टोल्ड, असिस्टेंट जो होनी चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड होएगी, ओके। अच्छा, अब जो असिस्टेंट और जो ऑपरेटर हेड के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, दैट शुड बी 10 to 15 सेंटीमीटर, ओके। नाउ पेशेंट पोजिशन, अब पेशेंट इज ऑन द डेंटल चेयर, ठीक है। पेशेंट शुड ऑलवेज बी इन द सुपाइन पोजिशन, फ्लैट होना चाहिए, lying flat on the back onto the dental chair, ठीक है, और उसका जो हेड रेस्ट है वो नीचे होना चाहिए बिलो द हेड, ओके। सो ऑपरेटिंग लाइट, अब ये याद रखो, सॉरी आई लेफ्ट द लेटर जी इन दिस, सो इट्स LIGHT, ओके। सो ऑपरेटिंग लाइट, ऑपरेट कभी भी नेचुरल लाइट में ऑपरेट नहीं करना है, सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट है। आर्टिफिशियल लाइट, why do we use prefer artificial light, because it can be focused on any quadrant in the oral cavity। नाउ अब हम बात करते हैं हमारा इंट्रा ओरल प्रोसीजर कैसे जाएगा। सबसे पहले हमने बात करी थी कि केरीज रिमूवल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम एक्सकेवेटर्स यूज करेंगे। सॉफ्ट जो पोर्शन होता है केरीज का उसको बेसिकली रिमूव करता है, ठीक है। सर्कुलर एंड स्कूपिंग मूवमेंट्स जो है हमने यूज करना है, ओके। एक्सकेवेटर से हमने रिमूव करी अपनी जो सॉफ्ट केरीज है उसे, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हैचेट, हैचेट जो है उससे हमने अनसपोर्टेड इनामल जो है उसको फ्रैक्चर कर दिया, ओके। उसके बाद हमने डेंटीन कंडीशनर्स जो है वो अप्लाई करने हैं ऑन टू द सर्फेस ऑफ द टूथ। डेंटीन कंडीशनर जो है दैट इज 10% पॉलीक्रिलिक एसिड। उसके बाद पेपर पैड पे हमने और अपना जो स्पैचुला है उससे हमने जीआईसी मिक्स करना है और अप्लाई करना है ऑन टू द कैविटी, ठीक है। ओवरफिल कर देनी है पूरी कैविटी अच्छे से और फिर उसके बाद फिंगर प्रेशर अप्लाई करना है उसको स्मूदन आउट करने के लिए,
और उसको पूरा अंदर अडेप्ट करने के लिए। देन ऑब्वियसली वी हैव टू यूज द कार्बर और हमें फिनिशिंग करनी है एंड पॉलिशिंग करनी है। विद द हेल्प ऑफ रबर कप्स हम पॉलिशिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो जो मैंने अभी पिछले समराइज्ड फॉर्म में ये चीजें एक्सप्लेन करी, ये उसी का ही आपके पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री की बुक जो है उसमें ये डायग्राम्स जो है बने हुए हैं कि एक्सकेवेटर्स हमने सर्कुलर स्कूपिंग मूवमेंट्स में यूज करे, फिर हैशेट से हमने फ्रैक्चर किया इनामल को, जो अनसपोर्टेड इनामल था उसको रिमूव किया। डेंटिन कंडीशनर विच इज 10% पॉलीक्रिलिक हमने अप्लाई कर दिया। ओके, ओवरफिल कर दी कैविटी, फिंगर प्रेशर दे दिया। ठीक है, फिर कावर से हमने उसको रिमूव कर दिया कंटेंट को। ठीक है, ओके, कार्वर से करके उसके बाद हमने अपना जो ऑब्वियसली हमने ये बताया था प्लास्टिक स्ट्रिप और वेज जो है उसको बेसिकली प्लेस करना है कंडीशनर अप्लाई करके, तो सील करनी है अपनी रेस्टोरेशन जो भी है। ठीक है, फिनिश एंड पॉलिश करना है उसके बाद विद द हेल्प ऑफ रबर कप्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक ART. So hope you like this video. Stay tuned for next upcoming videos. If you have any doubts regarding my videos, my lectures, and you want me to discuss certain topics with you, you can drop down in the comment box. Subscribe my channel, hit a like if you like my video, and wait until my next video comes. Thank you. Have a nice day.